Thinking and worrying are not going to solve your problems, but taking action will. Hear that again. Thinking and worrying are not going to solve your problems, but taking action will. Just stop worrying and just fuck up. It's okay to fuck up. I fucked up. I fucked up big time. I'm in a mud and I'm still going down, and here I am making a video. Why do you think I'm that crazy? It's because I want this. I want the life I'm chasing. So do the bloody thing. It's not even a mess anymore. It's a blunder. So the biggest lesson I've learned is that do not take any decision in anger. The person you are when you're angry and the person you are when you're calm and collected, it's completely different. I don't even blame the things that happened to me because it helped me realize that how foolish I was and how foolish I can be when I'm angry. And I'm basically here to guide you so you won't have to repeat the same mistakes that I'm making. Hi guys, this is Sam and I'm trying to make my life a little better and trying to be the greater version of myself. And I'm here documenting myself and recording myself making mistakes and sort of guiding you so you won't have to repeat the same mistakes that I'm making. I also want my people out there to, grow with me. I want to meet people. I want to meet people who grow with me. So just make sure you hit the subscribe button and the bell icon for more videos like this where I'm failing miserably so you don't have to fail that way. Now, for the people who are dying to hear my story, me making films, me making videos, me making edits of myself, me shooting everything, me reading this type of books, okay, me journaling, me story writing, okay, me doing anything except studying, like solving math problems, doing my laboratory work, applying for jobs. Okay, other than this, if I do anything else, it's like the biggest deal in my house. All your parents want is you to have a fucking 9 to 5 job, and then you're gonna marry a 2 year older man than you who's a complete stranger, have 4 or 5 kids. Now, like, अगर तुम्हें 9 महीने नहीं लगते ना बच्चे पैदा करने के लिए, तो वो भाई 1 महीने में मांग लेते हैं. ठीक है, 10 महीने में 10 बच्चे चाहिए उनको. ये है उनका फंडा. And that's what they think life is about. It's not about exploring. It's not about going out there. Okay? It's not about living your dreams. For them, it's that. And they don't understand this generation. ये जनरेशन चाहती है बाहर जाना, घूमना फिरना, लोगों से मिलना. इस दुनिया में पैदा हुए हैं तो उसको मीनिंगफुल बनाना. भाई तुम एक डब्बे में बैठने के लिए पैदा नहीं हुए हो मेरे भाई. वो कंप्यूटर के सामने अपनी ज़िंदगी सड़ाने के लिए, बच्चे पालने के लिए. बच्चे पालो यार, but don't make it a lifetime purpose. It's not a fucking lifetime purpose. It's so bullshit. It's so messed up, the system. I hated it. I hated it. And then obviously I had the enough guts to like create an Instagram account and create this YouTube channel, and I started filming myself. Okay, मैंने arguments किए हैं अपने parents से like daily, on the daily basis. First of all, I started छुप छुप के doing all this कमरे में. अब भाई let me tell you one thing about myself. हमारा 2 कमरे का घर था. ठीक है, एक कमरे में किचन है जहाँ मम्मा पापा रहते हैं, एक कमरे में मैं रहती हूँ, बट ये सार्वजनिक है. ओके, तो मैं जब पैदा हुई थी तब से लेकर मैं अभी हो गई हूँ 22 साल की. ठीक है, अभी तक मेरे जीवन में प्राइवेसी नाम की कोई चीज़ नहीं है. क्यों, 2 कमरे का घर है, तुम कहाँ से लाओगे प्राइवेसी? एंड आई इट्स नॉट लाइक आई ब्लेम एनीवन, नो. ओके, द कंडीशन माई पेरेंट्स वेंट थ्रू is because, and that's what exactly changed my perspective towards my parents, because I feel like I've misunderstood them, and I think most of us do that. Now, before anyone comes to a conclusion, let me tell you what happened. See, मैं जब I don't know 20 की हुई, जब मैं BSc कर रही थी, तब से मुझे उस घर से भागना है, मुझे दूर आना था. Obviously, मुझे उस एरिया से निकलना था किसी ना किसी तरह से. So I just started fucking manifesting. लाइक रोज़ रात को मैं रो रही हूँ तकिए में कि प्लीज़ कुछ ऐसा कर दो कि बस मैं निकलूँ यहाँ से. और सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है पता है, कि अगर तुम निकलना भी चाहो ना तो वो तुम्हें नहीं निकलने देंगे unless and until it's because you want to study. That's what they're all supportive about. That's messed up. That's so messed up. Now, why I feel like I took a stupid decision, because मेरे इस डिसीजन से my parents and I both are going to suffer if I fail, if I couldn't handle what I did to myself. I've been bubble wrapped all my life, okay? Like मुझे स्कूल छोड़ने से स्कूल घर लाने तक, ठीक है, उसके बाद मुझे घर से ना निकलने देने तक
उसके अलावा मुझे ऑटो में बैठने का एक्सपीरियंस नहीं है. आई डोंट नो द बेसिक ट्रैवलिंग सिस्टम. आई डोंट नो ऑल दैट. मुझे नहीं पता. मैं ऑटो रुकवा के बैठ के नहीं जा सकती. आई एम नॉट दैट कॉन्फिडेंट. दैट्स हाउ आई एम. एंड अचानक से मैंने क्या किया कि एज आई टोल्ड यू कि आई स्टार्टेड मैनिफेस्टिंग स्टफ कि मुझे यहाँ से बाहर निकलना है. सो व्हाट हैपेंड वाज दैट द मैनिफेस्टिंग शिट एक्चुअली वर्क्स. एंड आई वाज लाइक वाओ. अभी 2 दिन पहले मैं रोई हूँ तकिए में कि कुछ हो जाए जिससे मैं इस जगह से बाहर निकल जाऊँ. लाइक मैंने लिटरली भगवान से प्रे किया था. लाइक मतलब इतनी तकलीफ थी, इतनी इतनी तकलीफ थी. बिकॉज कम ऑन, if your parent, if the person you love the most says stuff जो तुम नहीं कर सकते, तुम कभी एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते उनसे सुनने के बारे में, जस्ट बिकॉज तुम एक वीडियो बना रहे हो. when they say stuff like that and they start gaslighting you, love bombing you and all that, it hurts. So I was just so angry and so in pain कि मैंने भाई भगवान से मतलब रो रो के भीख मांगी है. and that shit happened. okay, I went to college. they told me कि एक ऑफर आया है रिसर्च के लिए. ओके, एमएससी थीसिस के लिए यू हैव टू गो आउट ऑफ द, लाइक कहीं और जाना होगा तुम्हें. ओके, सो आई टुक दैट ऑफर. आई वॉज जस्ट दैट एंग्री कि हाँ भाई मुझे जाना है. एंड आई गेव एप्लीकेशंस एंड ऑल. मैंने सब कर दिया. नाउ व्हाट हैपेंड इज कि मेरा सिलेक्शन हो गया एंड मैं आ गई. लाइक आई एम नॉट एट माई होम, आई एम एट माई कजन्स हाउस. आई एम एट माई कजन्स हाउस एट 3 AM शूटिंग दिस. बिकॉज ये आज़ादी मुझे मेरे घर में नहीं है. ओके, तुम्हारे 900 साल पुराने तरीके से हम नहीं जी सकते. दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन. ओके, सुबह 7 बजे उठ जाओ, रात को 10 बजे सो जाओ. नहीं भाई, मुझे रात को 4 बजे तक जगना है, सुबह 12 बजे तक सोना है. एक दिन रात भर जगना है, एक दिन भर सोना है. रात भर जग के काम करना है. ठीक है भाई, हेल्थ के लिए ठीक नहीं है एंड ऑल दैट, बट वी आर नॉट डूइंग इट फॉर लाइक डेली पर्पस. हाँ, वेक अप व्हेनेवर द फक यू वांट, वेक अप व्हेनेवर द हेल यू, स्लीप व्हेनेवर द हेल यू वांट. It's okay to listen to your parents, yeah. After a certain time, eat according to them, sleep according to them, wake up according to them, walk according to them, eat according to them. It's suffocating. 11 से 5 बजे तक हमारा कॉलेज होता है. एंड मैं इतनी थक जाती हूँ कॉलेज में ही कि घर आने के बाद आई नीड एटलीस्ट 2 hours ऑफ रेस्ट. उसके बाद खाना पीना एंड देन नोट्स एंड देन कोचिंग एंड देन ऑनलाइन क्लासेस एंड देन द एक्स्ट्रा थिंग्स, द रिसर्च पेपर्स. सो आई couldn't find time to film myself. अब भाई तुम्हारे पास 24 घंटे हैं. 24 घंटे में से तुम 8 घंटे कॉलेज में ही रह रहे हो, 10 घंटे कॉलेज में रह रहे हो, तो तुमको रात का टाइम मिल रहा है शूट करने के लिए. भाई मैं सुबह उठ के 5 बजे शूटिंग करूँ, देन दे हैड अ प्रॉब्लम विद इट. नहीं, इतनी जल्दी मत उठो, और उठ रहे तो पढ़ने के लिए उठो. भाई मैं 11 बजे से रात के 12 बजे तक पढ़ रही हूँ. सुबह के 11 बजे से रात के 12 बजे तक आई एम स्टडिंग. एंड अगर मैं सुबह 5 बजे उठ के 7-8 बजे तक मैं आपको फिल्म कर रही हूँ, यार मैं पढ़ भी तो रही हूँ ना. Why don't they get it कि I'm studying as well and I want to do this as well too? What's so wrong with this? What is so wrong with this? I just want answers. And if you can't give me answers, accept that you're wrong. And every parent should understand this. It's suffocating. You're not making your child well mannered. You're just chaining. You know, the sarcasm, the जो कटाक्ष करते हैं ना, भाई प्यार से बोल लो. तुम सीधे सीधे समझा दो उनको, सीधे सीधे मना कर दो. ताने मारने की क्या जरूरत है? एंड यू नो व्हाट, ऑनेस्टली इन सब चीज़ों से अब मैं दूर भाग रही हूँ. ओके, दैट्स व्हाई आई हैव रन अवे. बट आई एम नॉट गोना स्टे हियर फॉरएवर. आई एम गोना हैव टू मूव टू अ रेंटल. ओके भाई, obviously my cousin's house is this. It's not my own house, and I don't think they're gonna like it if they find myself filming at 3. I'll probably move to a hostel or a rental a few times later. So the biggest mistake I made is that I took the decision in rush. भाई तुमको अपने घर से निकलना है, तुमको अगर बाहर जाना है और वो सब काम अकेले करना है जो तुम सारी ज़िंदगी बबल में रैप होके अपने पेरेंट्स के भरोसे करते आए हो, इवन इफ यू डिडंट वांट इट टू. सो भाई तुम्हारे पास सबसे पहले एक प्रॉपर प्लान होना बहुत ज़रूरी है, जो कि मेरे पास नहीं था, नहीं है, अभी भी नहीं है. ओके, आई डोंट हैव मनी एंड इट्स नॉट लाइक इट्स इवन अ प्रॉब्लम फॉर मी, बिकॉज आई एम गोना टेल यू. Remember this point, I'm going to tell you this. Calculating expenses without, I just applied to go to the college and I just got selected and I just traveled here with my father. Now coming here in the college, the पहला bomb मेरे ऊपर फूटा था was the financial मिर्च मसाले, you know. पहला bomb यही था भाई. So मुझे around 30 to 40,000 rupees की need है to pursue all this, and I don't have any financial plans. So obviously I'm gonna have to look for a job and continue this with a job, which is not possible because what I'm going to do in this college is कि मुझे दिन भर वहाँ रहना है. So I'm gonna not find anything like
anything for job. और ये 2-3 महीने के लिए चीज़ है. The next bomb, obviously, transportation. As I'm bubble wrapped all my life, I don't know the basic transportation skills. I can't even stop an auto, and because this place is new to me, because this place is absolutely new to me, I can't. I don't know the addresses. I can't. I can't. I'm doomed. So, if anything is going to be fixed in me with this, is my anger issues, my ability to take decisions, and my communication skills. I'm not even mad that I took the wrong decision, bro. Obviously, you have to fuck around to find out, right? Is that what I'm doing? I know this is the more you fuck around, the more you're gonna find out. So I think I'm gonna find myself some other way to earn first. ओके अगर तुमको कहीं बाहर जाना है, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि भाई तुम डिसीजन ही मत लो, तुम बाहर ही मत जाओ, बिल्कुल नहीं. कई बेवकूफ़ ऐसा समझने वाला है इस वीडियो को देखें. नो, यू हैव टू फक अराउंड टू फाइंड आउट. गो आउट देयर बट विद अ प्लान. ओके, एक्सपेंसेस, अपनी एबिलिटी देख लो इसकी, बिकॉज ये जो है ना भाई, तुम कुछ नहीं हो, और इसी के लिए वी हैव टू बी द बेटर वर्जन ऑफ योरसेल्फ, और इसी के लिए यू हैव टू fucking step out of your comfort zone. And I'm so glad I took the decision, but still I'm thinking कि मुझे एक बार सोच लेना चाहिए था, because I'm not the only one who's going to suffer from this. If I failed, my parents are going to be the one who are paying for it. मेरा क्या है भाई, मैं अपने आप को ब्लेम करके जी लूँगी, बट उनका मुझे ब्लेम करना मुझे नहीं पसंद आएगा ना. एंड यू नो व्हाट, दिस इंसिडेंट मेड मी रियलाइज कि what I am to my parents, what I mean to them, and not in a bad way. ठीक है, they don't understand your dreams, they don't care about your dreams, is that okay? But they care about you. Okay, look, your parents throughout their life, they are taught to survive. Okay, हमारी लाइफ उनके मुकाबले काफ़ी ईजी है, इसमें और कोई दो राय नहीं है, बट हम वो ईजी लाइफ जी रहे हैं, इनसे उन्हें खुशी होनी चाहिए, बट उन्हें खुशी नहीं है. वो अभी भी हमें सर्वाइवल ही सिखा रहे हैं. भाई हमारी लाइफ ईजी है, तुम अभी भी हमें क्यों सर्वाइवल सिखा रहे हो कि पढ़ाई इज़ इम्पॉर्टेंट, बट ओके पढ़ाई इज़ इम्पॉर्टेंट, तो उनके माइंड में अभी भी वो सर्वाइवल माइंड सेट है. बट दे हैव टू अंडरस्टैंड कि हमारी लाइफ ईजी है, और उन्हें इस ईजी लाइफ से जलन नहीं होनी चाहिए. दे शुड बी आई डोंट नो भाई, तुमने ही हमें ईजी लाइफ दी है ना, तो अब जब हम वो ईजी लाइफ जी रहे हैं, तो दिस जनरेशन वांट टू लिव इन प्रेजेंट, बट दे आर फोर्स्ड टू लिव इन फ्यूचर. All the parents, if any parents is out there, if they're that understanding, कि stop bubble wrapping your kids, घर से बाहर निकालो उनको, लात मार के निकालो उनको घर से बाहर, लात मार के तुम्हारी छाती पे बैठ के मुंह डलेंगे वरना. दे आर ब्रेन वॉश्ड इन सच अ वे कि उनको लगता है कि एक 9 to 5 जॉब और बस उसी में अपनी ज़िंदगी बिता देना. मतलब अगर तुम्हारे पास एक बड़ी जॉब है तो यू हैव एवरीथिंग. दे लुक इट लाइक एन अचीवमेंट. It's not. It's not an achievement. It's just a trap to keep you away from the actual abundance and actual happiness that you can find. When I came here, I thought about everything. Okay, the expenses, the rent, the books, the food. They don't even give food here in the hospitals. You have to purchase the foods. सिर्फ बेड का पैसा लेते हैं यहाँ पे. अगर टिफिन लेना तो उसके लिए अलग से पैसे. So obviously it's too much for me. Okay, मेरी savings है. I've saved some money, but it's not going to be enough, I don't think. So obviously I reached out to the people who bubble wrapped me the most, and I've just realized that how much me achieving the things they want me to achieve means to them. I don't even care if they're supporting me like this for a job. I don't care. All I see is the support, and I felt guilty कि मैंने आर्ग्यूमेंट किए भाई. वीव आर्ग्यूड. ओके, और वो भी पढ़ाई के लिए नहीं, और मेरे घर से निकलने के लिए भी नहीं. हमारी आर्ग्यूमेंट हुई है कि तुम फिल्म मत करो, तुम फालतू चीज़ों पे ध्यान मत दो. भाई फालतू नहीं है, इट्स जस्ट. और पता है मैं वीडियोस और ये जो भी है ये किसी मकसद के लिए नहीं कर रही हूँ. इट गिव्स मी पीस. दिन भर का टेंशन तुम काम धंधा करके आ रहे हो भाई, तुम पीस के लिए कुछ करोगे, अपने सपनों के लिए कुछ करोगे. दैट्स व्हाट आई एम डूइंग इट फॉर, बट दे थिंक कि आई एम वेस्टिंग माई टाइम. It's that simple. Don't think I'm wasting my time. I'm just trying to find peace in my chaotic life. So when I reached out to them, I felt so terrible, and I just cried कि बहुत expensive हो रहा है, बहुत ज़्यादा फीस बता रहे हैं. And they said कि like, why are you worrying about the expenses? They said it. Why are you worrying about the expenses? हमने कुछ सोच समझ के तुझे वहाँ भेजा है. मतलब ऑब्वियसली कॉलेज से मैं घर गई, मैंने उन्हें बताया कि मुझे यहाँ जाना है, मेरा सिलेक्शन हो गया. दे वर सो हैप्पी. देन आई वाज लाइक वाओ,
अच्छा है, कुछ दिन के लिए बाहर जाऊंगी, मस्त अकेले रहूंगी, शूट कर लूंगी, फिल्म भी कर लूंगी, काम भी हो जाएगा, बिकॉज आई कैन डू थिंग्स आई कुडंट डू इन फ्रंट ऑफ देम. दैट्स व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ. रात के 3 बज रहे भाई, बिकॉज दिन भर मुझे टाइम नहीं मिला, सो आई एम डूइंग इट नाउ. एंड दे वर लाइक, तू इतना क्यों घबरा रही है, हमने कुछ सोच समझ के तुझे भेजा है. एंड दे इमीडिएटली ट्रांसफर दे. भाई अगर तुम इतना सपोर्ट अपने बच्चों को उनके सपनों के लिए दिखा दो ना, अदर देन स्टडीज़, अगर वो कोई और चीज़ करना चाह रहे हैं, अगर तुम ऐसा सपोर्ट उन्हें दिखा दो ना, भाई दुनिया जीत लेंगे वो. ऐसा कुछ नहीं है कि वो नहीं कर पाएंगे अगर तुमने ऐसा सपोर्ट उन्हें अदर देन स्टडीज़ किसी चीज़ में दिखा दिया. ऑब्वियसली एज आई सेड कि उनके सर्वाइवल माइंडसेट की वजह से वो ऐसा नहीं कर पाते. बट एज लॉन्ग एज यू वांट टू डू एनीथिंग इन योर स्टडीज़, अगर तुमको बाहर जाके पढ़ना है, अगर तुमको बाहर जाके जॉब करनी है, तो दे विल डू एनीथिंग. बट उसी की जगह अगर तुम अपने एक्सपेंस उन्हें बता दो कि मुझे कैमरा चाहिए, मुझे हाई फाई टेक्नोलॉजी वाले ड्रोन्स चाहिए जिससे मैं अच्छी फिल्मिंग कर सकूँ, मुझे एक आर्ट बुक चाहिए, मुझे ड्राइंग की ये चीज़ें चाहिए, इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम फॉर देम. What about us? Now, there's a surprise advice for the people who stay till the end. तुम जॉब करो, स्टडी, फाइंड अ जॉब, डू इट फॉर योर पेरेंट्स, डू इट फॉर देम यार, दे डिजर्व इट. देखो, आई हैव सीन माई फादर नॉट बाइंग अ सिंगल पीस ऑफ क्लोथिंग फॉर हिमसेल्फ, बट माई wardrobe was full. ओके, मेरे नए कपड़े हर बर्थडे पे, हर दीपावली पे, हर ओकेजन पे, जिस भी ओकेजन पे मुझे ज़रूरत होती है. ऑब्वियसली आई हैड टू ग्रो अप अर्ली इन द चाइल्डहुड, सो आई हैवंट डिमांडेड मच. कैन यू अंडरस्टैंड, कैन यू अंडरस्टैंड मी? आई थिंक मोस्ट ऑफ द पीपल अंडरस्टैंड मी. मैं लोअर मिडिल क्लास की भाई, लोअर मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास. ओके, सो हर महीने मुझे ड्रेसेस नहीं मिलती, हर महीने मैं वेकेशन पे नहीं जाती भाई, मैं घर से बाहर नहीं निकलती. थ्रू आउट माई लाइफ, स्कूल टू होम, होम टू स्कूल, इन कॉलेज में भी वही कर रही हूँ. And I've seen my father suffer for it. School की fees, ये वो, all the expenses they are handling. Even now they are handling it. मैं कुछ नहीं कर रही हूँ. देख लो, यहाँ पे बैठ के वीडियो बना रही हूँ. I don't know why I feel guilty for, you don't have to feel guilty for doing something for your peace, for your dreams. You don't have to feel guilty for, doing something for your peace and your dreams. But तुम्हारे पेरेंट्स एटलीस्ट ये डिजर्व करते हैं कि तुम भाई अचीव कर लो ना, थोड़े समय के लिए अचीव कर लो, गेट अ जॉब, एंड देन उससे अपनी तुम साइड हसल को फंडिंग करना स्टार्ट कर दो, अपनी ड्रीम को फंड करना स्टार्ट कर दो. और जब तुम्हारे उस ड्रीम से अर्निंग्स होने लगे ना, जो तुम्हारी हॉबी है, अगर तुम उससे मेक करने लगो, अर्निंग करने लगो, देन किक ऑफ द जॉब, बिग डील. तुम जॉब से जितना कमा रहे हो उससे डबल ले लोगे भाई, इस यहाँ पे ले लोगे ना, ऑब्वियसली ले लोगे. देन योर पेरेंट्स कुडंट केयर अबाउट व्हाट यू डूइंग अनलेस यू आर मेकिंग मनी. अगर तुम अच्छे पैसे बना रहे हो ना इस जॉब से, दे डोंट केयर. गिव योर पेरेंट्स व्हाट दे डिजर्व, बट फॉर दैट यू डोंट हैव टू गिव अप ऑन योर ड्रीम्स. यू डोंट हैव टू गिव अप ऑन योर ड्रीम्स. ओके, जो चीज़ें तुम्हें करनी है वो चीज़ें भी करो, छोड़ो नहीं. यू नो व्हाट, इफ़ यू डिसिप्लिन इनफ ना, इट्स दैट इजी टू मैनेज योर जॉब एंड योर ड्रीम्स. देख लो, दिन भर कॉलेज करके आई हूँ, अभी फिल्म कर रही हूँ, कल सुबह जल्दी उठ के एडिट कर लूँगी. बट इसी की जगह इफ़ यू आर लिविंग विथ ऑब्वियसली योर पेरेंट्स, बट इसी की जगह अगर तुमको रूल्स में बांध के रखा जाए कि नहीं रही इतनी रात को क्यों जगना है, तुमको दिन भर थक के आई हो, आराम नहीं करना है. अरे भाई मुझे नहीं करना है आराम, मुझे मेरे सपनों के लिए काम करना है, मुझे रात भर जगना है, एंड मैं जगूंगी, सुबह जल्दी उठना है, दौड़ना है, एक्सरसाइज करनी है. माई प्रॉब्लम विथ मी एक्सरसाइजिंग, वाई? हमारा मोहल्ला अच्छा नहीं है तो जॉगिंग करने मत जा भाई. सो it's not, as I said, survival mindset. It's all of their survival mindset that's controlling us, and I can't even blame that. That's what exactly the problem ki it's no one's fault, no one is to blame here. Okay, और इसी वजह से arguments होते हैं, and both of the generations are failing. कोई नहीं जीतता भाई आर्ग्यूमेंट में, हम भी हारते हैं, हमारे पेरेंट्स भी हारते हैं, उन्हें लगता है वो जीतते हैं, वो अलग बात है. Even though I'm regretting कि भाई नहीं आना था, बहुत काम करना पड़ रहा है and all that, but I think in the end it's gonna be worth it, because अगर कुछ नहीं भी हुआ, so I'm gonna do well for myself later. That was the story. I know I haven't shared a lot, but I fucked up. But one thing's for sure, कि I'm gonna do things I couldn't do, and I'm sure as hell कि I'm going places. Okay, definitely going places.
You just wait and watch, and make sure you subscribe and hit that bell icon to grow with me. Okay, promise me, promise me we're gonna grow together. Promise me we're gonna grow together, and promise me you're not gonna give up on yourself, and promise me you're gonna take the decisions yourself, and you're gonna take the decisions the hard way, and promise me you're gonna fuck around and find out. So I'm gonna give you guys a little dare. Okay, just go to your parents and tell them about your dream. कि मम्मा पापा मुझे ये करना है, ठीक है, मैं पढ़ाई करूँगा, मैं दिन में 12 घंटे पढ़ाई करूँगा, ओके, मैं दिन में 18 घंटे पढ़ाई करूँगा, बस 1 घंटा मुझे दे दो, 1 घंटा, एटलीस्ट 1 घंटा दे दो. और अगर वो 1 घंटा नहीं दे सकते ना, और अगर वो 1 घंटा भी नहीं दे सकते ना, देन यू नो व्हाट यू हैव टू डू इट. एंड यू नो, अगर तुमको स्टडी से रिलेटेड भी कुछ करना है, अगर तुमको बाहर जाके कुछ करना है, अगर तुमको स्टडी करने के लिए बाहर जाना है, जाके बोलो अपने पेरेंट्स से. दे वोंट इवन हेजिटेट टू डू इट. मैं बोल रहा हूँ 50 out of 20 पेरेंट्स इंस्टेंटली मान जाएंगे, एज लॉन्ग एज इट्स गोइंग टू बी योर यू नो स्टडी रिलेटेड थिंग. एंड उन 50 में से 2 या 3 पेरेंट्स ऐसे होंगे जो तुम्हारे ड्रीम्स की कदर करेंगे, और हो सकता है एक पेरेंट ऐसा हो जो तुम्हारे सपने के लिए तुम्हें इस कदर सपोर्ट करने के लिए तैयार हो. और वैसे ही लोगों के बच्चे एक्चुअली में कुछ कर जाते हैं. जस्ट सिर्फ पेरेंट्स के सपोर्ट से बहुत कुछ हो सकता है. सिर्फ उनके बस ये कह देने से कि तू उसके लिए चिंता क्यों कर रही है, हमने कुछ सोच समझ के तुझे वहाँ भेजा है. मुझे इतनी मोटिवेशन आई कि बस भाई मैं स्टडी में घुस गई थी. मुझे लगा भाई पढ़ाई लिखाई के लिए इतना सपोर्ट मिल रहा है तो पढ़ाई लिखाई कर देती हूँ. भाई कुछ के लिए तो सपोर्ट मिल रहा है, ये सोच के मैंने पढ़ना स्टार्ट कर दिया. कुड यू बिलीव? एंड इट्स सक्ड. इट्स 2 दिन में गिव अप किया मैंने. Seriously, but study is important. Don't drift away from study, but don't drift away from your dreams either. That's all the moral of this fucking video. Don't drift away from your dreams no matter how hard things get. Okay? And you know, if there's any problem, your parents are going to be there for you. Because they've bubble wrapped you. So obviously अगर प्रॉब्लम में पड़ोगे तो वो आएंगे. एंड यू नो, अपनी ये मिसअंडरस्टैंडिंग उनसे हटा लो कि दे डोंट केयर अबाउट यू. वो तुम्हारी केयर करते हैं, वो तुम्हारे सपनों की नहीं करते. देयर इज़ अ डिफरेंस. अभी वो नहीं समझेंगे. सो सबसे बेस्ट थिंग तुम यही कर सकते हो कि तुम एक पीस एंड क्वाइट के लिए निकल जाओ कहीं दूर. झूठ बोल के निकल जाओ कि पढ़ने जा रहे हो. ओके, कहीं दूर चले जाओ. 1 महीने अपना रेंट हैंडल करोगे ना, 1 महीने अपने फाइनेंसेस हैंडल करोगे ना, तुम समझ जाओगे व्हाट देव बिन थ्रू. तुम ये समझ जाओगे कि उनकी ये सर्वाइवल सोच क्यों है. तुम ये समझ जाओगे कि वो इतनी टेंशन क्यों ले रहे हैं. तुम सब समझ जाओगे उनके बारे में. और मैं ये चीज़ समझी हूँ, इसलिए बाकायदा मैंने उनसे सॉरी बोला है, और बाकायदा मैं पढ़ने वाली हूँ, और बाकायदा मैं मेहनत करने वाली हूँ. बिकॉज दे आर स्पेंडिंग ऑन मी. देव ऑलवेज स्पेंट ऑन मी. आई एम सो प्राउड ऑफ माई पेरेंट्स. बट इसका ये मतलब नहीं है कि तुम्हें अपने सपनों पे गिव अप करना पड़े. नो, नो, नॉट अ सिंगल पर्सन इज वर्थ गिविंग अप ऑन योर ड्रीम्स. डू यू नो व्हाई यू हैव ड्रीम्स? ड्रीम्स, इन माई ओपिनियन, ड्रीम्स इसलिए हैं कि तुम्हारे पास सपने इसलिए हैं, तुम ये चीज़ें इसलिए करना चाहते हो क्योंकि तुम वो करने के लिए ही पैदा हुए हो. भाई तुम्हें वो विजन क्यों आएगा? तुम क्यों सोचोगे कि तुम्हें वो चीज़ करनी है? क्यों आएगा तुम्हारे माइंड में कि तुम्हें वही करना है? क्योंकि तुम पैदा वही चीज़ करने के लिए हुए हो यार. हाँ, जो लाइफ तुम यहाँ इमेजिन कर रहे हो वो किसी रीज़न की वजह से है ना. सो डोंट गिव अप ऑन दैट. तुम you're wasting your life if you're doing that. No one is worth it. No one is worth a life. Okay, now मैं तो फंस गई. तुम मत फंसना. उससे मैं डिसीजन मत लेना. And don't be hard on yourself. And don't be hard on your parents. You know, it's their first time too. Okay, वो सीख के पेरेंट्स बनने की ट्रेनिंग लेकर नहीं आए. ये उनकी भी पहली ज़िंदगी है, तुम्हारी भी पहली ज़िंदगी है, और तुम दोनों की आखिरी ज़िंदगी भी है. It's you get only one life. Okay, be kind to yourself, be kind to others, and I'll see you next time in my next video. Fuck around and find out.